Hello friends, welcome back in my another lecture in optimization and calculus of variation. Today I am going to start with a non-linear programming problem, right? So first of all, unconstrained optimization मीन जिसमें कोई भी किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कंस्ट्रेशंस नहीं होगी, दैट मीन्स अनकंस्ट्रेंड optimization problem. Unconstrained here it means we have to, this is a problem of determine extreme point. Extreme means maximum or minimum points of an unconstrained optimization unconstrained optimization type of continuous function, right? Means we have to we have a problem of determining maximum minimum point of unconstrained type of continuous function. First of all, I'm going to recapitulate. This is just a repetition that you had studied in +2 standard. Function of one variable f of x is said to be, this is said to be local or relative minimum at point x is equal to x net x naught if second order derivative at this point is positive, and this f of x is said to have local or relative maximum at this point if second order derivative at this point is negative, right? if f and f of x is neither maximum or minimum if second order derivative at this point is zero, तो यहाँ से हम कुछ भी डिसाइड नहीं होगा मैक्सिमम और मिनिमम, एंड in this case we will compute higher order derivative. As you know, the necessary and sufficient condition for existence of this type of local maxima or local minima and point of inflections, these are the given below. These are the necessary conditions in all three cases are is same. That means we have to put first derivative equal to 0. This is necessary condition. And sufficient condition in first case, this is if all the derivative up to n minus 1th, if all the derivative up to n minus 1th at point x naught are 0 but nth derivative is negative or n is even, must remember n is even, then function is said to be concave and we will have local maxima at this point अगर ये नेगेटिव होता है. सेकंड, ये कंडीशन तो वैसे, ये सेकंड मीन्स if all the derivative at this point up to n minus 1th are 0, this is same case as in the previous, but nth derivative at this point is positive or n is even. In this case function is said to be convex and we will have local minima at this point. Similarly, third case, if all of these n minus 1th derivative at x naught are 0 but nth derivative is not equal to 0 for n is odd, in this case we will have point of inflection, right? Means हमारे पास लोकल कॉन्वेक्स और कॉन्केव कुछ भी नहीं आएगा, neither local maximum local minimum, we will have point of inflection provided nth derivative for n is odd is not equal to 0. इसमें एक x naught आ रहा है where x naught is the stationary point, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, समटाइम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, राइट? स्टेशनरी पॉइंट मीन सिंपली जब हमारे पास फंक्शन दिया होगा इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज उसको हम एक्स नॉट से डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी पॉइंट्स, एंड दिस हैज बीन इवैल्यूएटेड इन दिस वे, राइट? मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इसको सॉल्व करो, ठीक है, वी विल गेट एक्स नॉट, we get x naught और उस x naught को बोलेंगे हम स्टेशनरी पॉइंट. नोट, if f of x is defined in this open interval then
फाइंड द, तब हम क्या करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट दीज एंड पॉइंट्स ए एंड बी एंड ऑल्सो एट अ स्टेशनरी पॉइंट, जो जितने भी इसके स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे, राइट. देन द लार्जेस्ट value of f of x, value of f of x is, इसको बोलते हैं इज ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ f of x is ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमम. मीन्स किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालना है, उस फंक्शन को पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, then we will find the value of f of x at in this at end point of this end point of this interval and at a stationary point. उन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट और ग्लोबल मिनिमा, राइट. ये तो तब बात हुई व्हेन एफ ऑफ एक्स इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल. व्हेन एफ ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, देन Hessian matrix, then a Hessian matrix is formed. तब एक हम Hessian matrix बनाएंगे. Hessian, this is name of mathematician, that is, इसको हम h of x से डिनोट करेंगे, and this is second order partial derivative of f with respect to xi xj at point x is equal to x naught. to decide, ये Hessian मैट्रिक्स बनाएंगे हम टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स. मीन्स एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा, दैट मीन नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट. एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस Hessian मैट्रिक्स, इट ऑल डिपेंड ऑन वेदर देयर आर 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स एंड सो ऑन. Continue in this way, right? If we have 2 variables, then this Hessian matrix will be of 2 by 2. If we have 3 variables, then this Hessian matrix will be of 3 by 3 order and so on in this way, right? And इस Hessian matrix से हमारे को आइडिया हो जाएगा what will be the nature of f of x. Then f of x is local minima at x is equal to x naught if Hessian matrix at x naught is positive definite. इज, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा, लोकल मिनिमा होगा, एंड एफ ऑफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट इफ Hessian मैट्रिक्स एट एक्स नॉट इज नेगेटिव definite, and there exists a point of inflection at this point. If Hessian matrix at x naught is indefinite. अगर indefinite होगा, means indefinite means ना पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव डेफिनेट होगा. पॉजिटिव डेफिनेट मीन्स इस Hessian मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे. इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस Hessian मैट्रिक्स आर पॉजिटिव, देन दिस विल बी पॉजिटिव डेफिनेट. इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस Hessian मैट्रिक्स are negative, then this will be called as negative definite. If some values of this eigen values of this matrix are positive and some are negative, then we will say this is indefinite, right. Now come to note number 3. The necessary condition for f of x to have local optimum means maximum or local optimum maximum or minimum value at x naught is that gradient of f at x naught must be equal to
0, where del means this x1 x with respect to x2 so on partial to x with respect to x, and it depends on how many variables are there actually say, and this del is the gradient vector, is the gradient vector. So what is the necessary condition for f of x जो ये more than one variable है to have local maxima or local minima at the stationary point is that gradient of f of x को हमने 0 put करना है, right, and here this means gradient vector. Fourth, the sufficient condition for stationary point x naught to an extreme point, extreme means maximum or minimum, is that Hessian matrix H at x naught is negative definite when a negative definite होगा when x naught is maximum point and this Hessian matrix H at x naught is a positive definite when x naught is a minimum point. ये ऑलरेडी वैसे इंक्लूड होगा यहाँ पर. यू कैन सी हियर हमारे पास लोकल मैक्सिमम कब आएगा, यहाँ देखो x नॉट इज मैक्सिमम पॉइंट, या लोकल मैक्सिमम पॉइंट f of x is local maximum और x naught को बोलेगा maximum point when this is negative definite. This is also included here, so there is nothing new in this note, right. All we can say that is हम इसको बस क्या बोल रहे हैं, sufficient condition, right, sufficient condition for stationary points, and these are the necessary condition तो एक ये gradient of f at x naught must be equal to 0 and sufficient condition accordingly यहाँ से बनेगी. जैसे अगर f of x local maximum होगा तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा. ये कब मिलेगा, जब हेशियन मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट होगा, राइट. एंड सफिशिएंट कंडीशन में और भी आ सकता है जब एफ ऑफ एक्स का लोकल मिनिमा होगा. लोकल मिनिमा कब होगा, मिनिमम पॉइंट पर होगा. लोकल मिनिमा होगा तो एक्स नॉट मिनिमम पॉइंट होगा. ये मिनिमम पॉइंट कब आएगा, व्हेन हेशियन मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, राइट. Constant problems of maxima or minima. Here we will discuss problems of optimization of continuous functions when side constants conditions बोलेंगे हम, और constant भी बोल सकते हैं, और conditions और constants are placed on the वेरिएबल. जब जो हमारे जितने भी फंक्शन में वेरिएबल हो गए अगर उन पर मान लो साइड कंडीशंस या उनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर प्लेस्ड ऑन द वेरिएबल्स. दीज कांस्टेंट्स, ये जो हमने कंडीशन लगाई, these constants may be in the form of, ये इक्वेशन के रूप में भी हो सकती है और इनइक्वलिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, राइट. जो भी कंडीशंस हम लगाएंगे. कांस्टेंट प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम मींस हम इसमें प्रॉब्लम्स होगी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यूस फंक्शन जिसमें साइड कंडीशंस या कांस्टेंट्स होगी वेरिएबल्स पर, एंड दिस कांस्टेंट्स या तो इक्वेशन के फॉर्म में होगी या तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में होगी, राइट. फर्स्ट लेट अस सपोज कांस्टेंट आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. पहले हम इक्वेशन वाले डिस्कस करेंगे, फिर इनइक्वलिटी वाले डिस्कस करेंगे. कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन.
ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम होगी अगर मान लो इसमें कांस्टेंट इक्वेशन की फॉर्म में होगी, तो हम ऐसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। जब भी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इस टाइप की होगी जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट होगी वो इक्वेशन के रूप में होगी, तो उसको हम लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी विल डू हियर, we wish to find optimum solution of this differential function। इस differential function का हमने optimized solution निकालना है। z this is function in term of x and x is a n tuple, this belongs to Rn। अगर if this belongs to R square then this will be ordered। अगर ये R square को belong करेगा x, तो हमारे पास x की क्या होगा, ordered pair होगा इस तरह से, राइट। when x belongs to R cube तो हमारे पास ordered triplet होगा, तो x1 x2 x3 एंड इसको बोलते हैं एन टपल, राइट। फिर इसमें वेरिएबल्स जा रहे हैं, फिर वेरिएबल्स आर सब्जेक्ट टू एम, एम इसमें जो है लेस देन एन है, वेरिएबल्स आर सब्जेक्ट टू एम कॉन्स्टेंट्स, आर सब्जेक्ट टू एम कॉन्स्टेंट्स। वो कौन सी एम कॉन्स्टेंट्स होगी, एच आई एक्स इज इक्वल टू 0, और इसमें जो आई वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू एम। एम कॉन्स्टेंट होगी जैसे h1 ऑफ x 0, h2 ऑफ x 0, hm ऑफ x 0, राइट। ऑल्सो इसमें जो एच आई आ रहा है, ऑल्सो एच आईज आर डिफरेंशिएबल, एच आईज आर डिफरेंशिएबल। इसमें जो एच आई आ रहे हैं फंक्शन आ रहे हैं, ये भी कैसे होंगे, डिफरेंशिएबल होगा, जैसे z डिफरेंशिएबल था। सो हम क्या करेंगे, इस वी विल फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता है। फिर वेरिएबल्स, इसमें जो वेरिएबल होंगे दीज आर सब्जेक्ट टू एम कांस्टेंट, बिकॉज इसमें n वेरिएबल है, दीज आर सब्जेक्ट टू एम कांस्टेंट, एंड m जो है या तो n की इक्वल होगा, इससे लेस होगा, राइट। ऑल्सो फिर हम एक लैग्रेंजी फंक्शन डिफाइन करेंगे, दिस इज फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स एंड लैम्डा, दिस इज डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन लैम्डा आई एच आई, एंड इन दिस समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू m। और इसमें कितने आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू m मीन्स इसमें लैम्डा m आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m, इनको सबको क्या बोलेंगे हम, लैग्रेंजीज, इन सबको बोलेंगे हम लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर्स, राइट। इस ये लैग्रेंजी फंक्शन भी हमने डिफाइन किया है। then the necessary condition for maximum or minimum of function f of x are the system of, हमारे पास m plus n इक्वेशंस आई हैं, पर सिस्टम ऑफ m plus n इक्वेशंस कैसी आई, लेट्स सी। पहले आई है आपका पार्शियल डेरिवेटिव l विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, दिस इज इक्वल टू partial derivative of f with respect to xj minus summation lambda I partial derivative of hi with respect to xj, and in this summation j is varying from 1 to m, as you can see here। कुछ नहीं, मैंने इस वाली इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू xj, और एज यू नो इसमें जो j वेरी कर रहा है, j इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, हमारे पास n वेरिएबल्स है, j इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास m थी, बट वेरिएबल्स तो हमारे पास n नहीं है, सो j इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। तो इट मीन जितने वेरिएबल होंगे उतनी बार इसका हमने इस लैग्रेंज इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है। 2 वेरिएबल्स होंगे तो x1 के साथ पार्शियल होगा, x2 के साथ होगा, सो इट ऑल डिपेंड ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा आई, तो इधर तो लैम्डा है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर समेशन भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली एच आई, ये भी पहले हमने 0 पुट करना, इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू 0। इसमें जो आई वेरी कर रहा है, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू m, वाई पार्शियल डेरिवेटिव l विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इज 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एच आई, बिकॉज लैम्डा आई मीन्स 1 बाई 1, या तो हम ये लैम्डा 1 के साथ होगा, लैम्डा 1 के साथ होगा तो यहाँ पर h1 आएगा, बिकॉज इस मिशन को अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, लैम्डा 1 h1 ऐसी टर्म्स आएगी, प्लस लैम्डा 2 h2 प्लस सो ऑन लैम्डा m
एच एम। अगर इसको मैं लैम्डा एन के साथ डिफाइन करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा, तब यहाँ से माइनस एच बना आएगा। टू लैम्डा टू से करूँ माइनस एच टू आएगा, लैम्डा एम के साथ करूँगा माइनस एच एम आएगा। सो अकॉर्डिंगली दैट्स वाई देर इज नो समेशन, एंड लैम्डा का डिफरेंशियल इधर से लैम्डा तो 1 होगा, तो हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह से आ जाएगा। You can see here these are n equations and these are m equations. That's why total equations are m plus n, m plus n equations आ रही है हमारे पास। which can then this question m plus n question then solved for m plus n unknowns x1 x2 xn lambda 1 lambda 2 lambda n, इतने m plus n unknowns आएंगे। what we are interested in obtaining x1 x2 xn, जबकि हमको ये बस हमको इन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, राइट। दीज ये जो नेसेसरी, इनको हम नेसेसरी कंडीशंस बोलेंगे। दीज नेसेसरी कंडीशंस also becomes sufficient for maxima or minima of the objective function, जो भी हमारे पास दिया होगा ऑब्जेक्टिव मिनिमा ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉन्केव। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्केव होगा तो ये बन जाएगी सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा, ये एफ ऑफ एक्स है। इस कॉन्केव या तो ये क्या होगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा मिनिमा के लिए, कॉन्वेक्स ब्रैकेट वाली टर्म जो है ब्रैकेट वाली कॉन्वेक्स के लिए, एंड द साइड constants are इक्वलिटी वन, साइड कांस्टेंट इक्वलिटी की फॉर्म ये हुई, मीन्स ये वाली नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट बन जाएगी फॉर मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्केव होगा, एंड दीज नेसेसरी कंडीशन बिकम सफिशिएंट फॉर मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास कॉन्वेक्स होगा, एंड जो हमारे पास जो भी कंडीशंस कॉन्स्टेंट्स या कंडीशंस होगी वो इक्वलिटी के फॉर्म में हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट constant in the form of equation. So these are the necessary conditions. Sometimes these also become sufficient, right? Now let's take some example of function having more than one variable, means इस टाइप का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, you are already familiar with these results, right? I'm going to discuss only here the problems of this type. When function consists of more than one variable, तो हम देख लेंगे उसमें हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा कब आएगा, राइट। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हम यूज करेंगे और हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। Let's take one example. This one, find the maximum or minimum value of this function. This is a non-linear programming problem. As you can see, the power of x1 x2 x3 is more than 1. That's why this is non-linear. This is non-linear programming problem, right? Solution. Since we know
because this is problem with more than one function with more than one variable. This we know necessary condition for optimum means maximum, minimum. Optimum means maximum or minimum value is gradient of f at x naught must be equal to 0, right? First of all, as gradient of f of x is equal to 0, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स, तो इसमें ग्रेडियंट में 3 ही ऑपरेटर्स आएंगे with respect to x1, partial derivative with respect to x2, partial derivative with respect to x3. F of x is equal to 0. This is also differential operator of order 3, right? Gradient of order 3. f of x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. f of x with respect to x1, f of x with respect to x2, f of x with respect to x3. तो इसको भी 3 है तो हमारे को इधर भी 3 लिखना पड़ेगा राइट में, वेक्टर की फॉर्म में 0 0 0, राइट. दिस एम्प्लाइज, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट बाई इक्वलिटी से, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x1 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x3 इज इक्वल टू 0. इस तरह से आपके पास आएगा, राइट. ये गिवन है हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमारे पास, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, 4x1 8x2 माइनस 12x3 प्लस 56, ये गिवन है हमारे पास. दिस इम्प्लाइज, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 सपोज कर लेता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू x1, तो x2 और x3 कांस्टेंट हो गए तो आएगा 2x1 माइनस 4, रेस्ट ऑल विल बी 0. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव करेंगे तो x1 और x3 0 हो जाएंगे, तो आएगा 2x2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. x3 के साथ करेंगे x1 x2 कांस्टेंट होंगे, 2x3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x1 आ जाएगा 2, यहाँ से x2 आ जाएगा 4, यहाँ से x3 आ जाएगा हमारे पास 6. तो स्टेशनरी पॉइंट मिल गया मेरे पास. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ these simultaneous equations is x नॉट. इस x नॉट से डिनोट करूँगा, इसकी वैल्यू है हमारे पास आ रही है 2 4 6, विच इज स्टेशनरी पॉइंट. ये स्टेशनरी पॉइंट बन गया हमारे पास, विच इज स्टेशनरी पॉइंट बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू आ रही है, राइट. नाउ ये तो नेसेसरी कंडीशन. नाउ by checking sufficient condition, अब हम sufficient condition निकालेंगे. sufficient, now by checking sufficient condition, b हमको Hessian मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. b must determine whether this stationary point x naught is a maximum और मिनिमम. क्योंकि हमको बोला मैक्सिमम और मिनिमम, अभी हमारे को पता नहीं ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. हियर आप Hessian मैट्रिक्स बनाएंगे हम. हियर द Hessian here the Hessian matrix at x naught is equal to 2 4 6 is given as
इसको हम एच एक्स नॉट हैशियन मैट्रिक्स इस टाइम 3/3 का होगा बिकॉज वेरिएबल्स आर 3 का होगा। तो इस तरह से बनेगा पर एफ विद रिस्पेक्ट टू x1 1 एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 2 होगा, एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 3 होगा, राइट। इधर एफ विद रिस्पेक्ट टू 2 1, एफ विद रिस्पेक्ट टू 2 2 मीन्स 2 स्क्वायर होगा, एफ विद रिस्पेक्ट टू 2 3 सिमिलरली यहाँ पर आएगा एफ विद रिस्पेक्ट टू 3 1, एफ विद रिस्पेक्ट टू 3 2, एफ विद रिस्पेक्ट टू 3 3 मीन्स 3 स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज हैशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल थे। यू कैन सी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू x1 हमने ऑलरेडी निकाला है, एक बार हम इसको और करेंगे, इस कम डेरिवेटिव और करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। यू कैन सी है दिस वन, इट मीन्स x2 वाले को हम x1 के साथ करेंगे। दिस इज पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट x2, अगर हम इसको x1 के साथ करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, सॉरी इसका डेरिवेटिव x2 वाले को हम x1 के साथ कर रहे हैं तो इसमें तो x1 है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली x3 वाले को हम x1 के साथ करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x1, इसमें x1 है नहीं सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू x2, इसमें x2 है ही नहीं सो डेरिवेटिव 0। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू x2 है इसमें तो ये 2 आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू x2, इसमें x2 भी नहीं है तो इट मीन्स पहले x3 के साथ हुआ फिर x2 के साथ हुआ, x3 के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, x2 के साथ करेंगे जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x3 विद रिस्पेक्ट टू x1 के साथ करेंगे तब भी इसमें x1 है ही नहीं 0, x3 इसको हम x2 के साथ करेंगे इसमें x2 भी नहीं है तो भी 0 आ जाएगा। x3 इसको हम x3 के साथ ही करेंगे तो x3 तो है इसमें तो इस x3 का 1 हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। दिस इज हैशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट। इसके अब हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ H इज, अब हम इसकी इसमें H एट x नॉट ऑलरेडी वैल्यूड हो चुका है बिकॉज इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है, x आता तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ H इज ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ H माइनस लेमडा आई मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमने ये बन गई हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकॉज हमारे पास आइगन वैल्यूज कहाँ से आएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएगी। इसको हम 0 इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, राइट। दिस फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। H की वैल्यू आपके पास H माइनस लैम्डा आई बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, दिस इज H माइनस लैम्डा आई, लैम्डा ये हो जाएगा आई मीन्स 1 0 ऑर्डर ऑफ 3 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 0। ये सारा क्या बन जाएगा अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, देगा 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा सॉरी तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट। दिस इज डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर लेते हैं तो ये ओपन करने पर हमारे पास बनेगा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इज हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 2 2 2। क्लियरली all the 3 eigen
वैल्यूज ऑफ एच एक्स नॉट आर सारी पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज इट मीन्स हमारे पास जो एच एक्स नॉट हेशियन मैट्रिक्स क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, ये पॉजिटिव डेफिनेट बन गया, दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट, एंड जो एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट जो हमारे पास 2 4 6 था, एंड दिस इज ये बन जाएगा लोकल मिनिमा, बन जाएगा लोकल मिनिमा ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हमको बोला था फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमा, तो हमने क्या करना है, हेशियन मैट्रिक्स का हमने को चेक करना था वेदर दैट इज पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव इन negative definite, right? So in this way this is coming to be positive definite because all the eigenvalues are positive, that's why we have local minima. Let's take another example. Let f of x is this is again a non-linear programming problem because x1 x2 have power higher than 1. Determine the maximum or minimum point if any of this function, इस point इस फंक्शन इसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है इस फंक्शन के लिए, राइट? सॉल्यूशन, since we know necessary condition for optimum means maximum or minima of function is gradient of f at x naught must be equal to 0, as हमारे पास गिवन है, हमारे पास f of x is given to be x1 2 x2 x1 x2 x1 square x2 square. Let us put this to be number 1 as gradient of f of x is equal to 0. This time we have only two variables, तो इसमें दो ही आएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, f of x. तो राइट साइड में भी हमारे पास वेक्टर में दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे इन दिस वे, f विद रिस्पेक्ट टू x1, f विद रिस्पेक्ट टू x2 is equal to 0 0. This implies f with respect to x1 is equal to 0, या तो आएगा f with respect to x2 is equal to 0. इनको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन 1. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 मीन्स x2 तो 0 होगा, ये आएगा 1, इधर से आएगा प्लस x2 प्लस x2 माइनस 2x1, 2x1 is equal to 0. Let us put this to equation number 2. दिस इज सिंस ऑफ 1. इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, तो x1 0 होगा, तो आएगा 2 प्लस x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0. लेट अस पुट दिस टू बी इक्वेशन नंबर 3. दिस इज अगेन ऑफ यूजिंग 1. अब 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं. ऑपरेटिंग फर्स्ट इक्वेशन प्लस 2 सॉरी सेकंड इक्वेशन प्लस 2 टाइम थर्ड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को एज इट इज रखो, वी गेट हमको क्या बनेगा 1 प्लस x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0. थर्ड क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 प्लस 2x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0. साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, सॉरी साइन नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज वी आर डूइंग प्लस. 2x1 ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, यह जगह 5 प्लस 5x2 साइन प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का भी माइनस ही रहेगा, राइट? साइन नॉट गोइंग टू चेंज, दिस विल बी माइनस 3x2. माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0. दैट इज यहाँ से x2 क्या आ रहा है 5/3, x2 आ रहा है 5/3. देयरफॉर फ्रॉम 1 हमको तो x1 निकालना है, तो यहाँ से फ्रॉम 2, तो यहाँ से x1 क्या आएगा, x1 आएगा माइनस
1 माइनस x2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 5/3 8/3 4/3 बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दैट इज x1 हमारे पास क्या आएगा 4/3। x1 x2 दोनों आएंगे, देयरफॉर एज simultaneous solution of 2 and 3 is, इसको हम x0 से डिनोट करेंगे, ये आएगा प्लस 4/3 5/3। अब इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेशनरी पॉइंट, विच इज स्टेशनरी पॉइंट। ये तो नेसेसरी कंडीशन को यूज करके हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, राइट। नाउ बाय चेकिंग सफिशिएंट कंडीशन, अब हम सफिशिएंट कंडीशन को चेक करेंगे। नाउ बाय चेकिंग सफिशिएंट कंडीशन we must determine whether this point x0 is, अब आपको ये निकालना पड़ेगा, is और मैक्सिमम, या ये मैक्सिमम है और मिनिमम, राइट। फॉर दिस we will write Hessian matrix at x0। इस x0 पर हमने अब क्या करना है, हेशियन मैट्रिक्स निकालना है, राइट। इस पर हम हेशियन मैट्रिक्स निकालेंगे। देखते हैं हेशियन मैट्रिक्स क्या बनता है हमारे पास, दैट इज, इसको हम हेशियन मैट्रिक्स को h एट x0, बिकॉज वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास 2/2 का बनेगा हेशियन मैट्रिक्स f विद रिस्पेक्ट टू this one, f with respect to 1 2, similarly f with respect to 2 1, f with respect to 2 2 square, this time ये बन जाएगा प्लस 2/2 का, सिंस देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स, 2 ही वेरिएबल्स थी हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। यू कैन सी हियर, हमको निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x1। वन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x1 इज ऑलरेडी देयर, एक बार फिर से x1 के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -2, x2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा -2। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2 वाले को हम x1 के साथ करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव x2 ये है, इसको जब हम x1 के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ से, दिस इज क्लियर, ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 वाले को हम x2 के साथ करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x1 ये है, इसको अगर हम x2 के साथ करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये भी 1 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x2, f विद रिस्पेक्ट टू x2 एक बार ऑलरेडी हो चुका है, फिर से करेंगे x2 के साथ तो -2 आएगा, -2 आएगा, राइट। ये मैंने कहाँ से बनाया, सिंस ऑफ यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को यूज करके बनाया है, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ h(x0) इज, तो इसके क्या होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ h माइनस लैम्डा आई मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, h तो है हमारे पास -2 1 1 -2 माइनस लैम्डा टाइम 1 0 0 1, 2/2 का ही बनेगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस वन,
ये है इज इक्वल टू 0, ये सारा क्या बन जाएगा हमारे पास -2 माइनस लैम्डा, ये बन जाएगा, ये तो 1 ही बनेगा, ये भी 1 ही बनेगा, -2 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, माइनस इन दोनों का 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, दिस इज लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, लैम्डा कॉमन रखेंगे, लैम्डा सॉरी ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3, ये बनेंगे फैक्टर, सो दैट इज लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 और -3 as both the eigenvalues of Hessian matrix H at x naught are नेगेटिव, दोनों आइगन वैल्यूज की नेगेटिव आ रही है, आर नेगेटिव, thus Hessian matrix H at x naught is a negative definite, is a नेगेटिव, ये नेगेटिव डेफिनेट बन गया, एंड जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट था, एंड स्टेशनरी पॉइंट x नॉट जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 4/3 5/3, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बन गया, पॉइंट ऑफ लोकल maxima of f of x, this is what we want to find, right? So dear friends, what we have learned in this lecture, we come to know how to find or write the necessary necessary and sufficient condition for function having for f of x having more than one variable, right? Having more than one variable. So as we know, necessary condition तो एक ही है, gradient of f of x must be equal to 0, and sufficient condition means we have to write or find Hessian matrix, and then later on we will find the characteristic equation of this, then eigenvalues of a Hessian matrix, right? Accordingly we will get here, or we come to know that whether the Hessian matrix is negative definite or a positive definite or a indefinite. Sometimes this is also indefinite, right? When one eigenvalue is positive, another is negative, then we will say indefinite, तो उस केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं आएगा, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर.